So, they have to, this is tunnel, this is equivalent to length. तो एक बात पक्की बात है कि वो जितना लेंथ किसी चीज का बढ़ती जाएगी उसका रेजिस्टेंस उतना बढ़ते जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा होगा, ये ऐसी बात है कि जैसे कोई मोटी पाइप है, तो मोटी पाइप के अंदर पाइप जितना मोटा रहेगा पानी उतना ज्यादा जाएगा, तो जाहिर सी बात है करंट उतना अच्छा होगा। और पानी जितनी पाइप जितना छोटा होगा, पाइप जितने पर लंबी होगी, लंबी पाइप होगा तो इतना ही कम होगा, इट्स रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा और करंट उतनी कम होगी। ओके, सो दिस इज दैट मींस R is equals to rho times L by L. Rho means that is called resistance. Okay, when you equations 2 and 3, and this is the relationship between resistance and length of wire and area of fluctuations. R equal to rho L by A. So these two things say now we got two major equations. One is earlier we have got V by I, V by V equals to IR, and the second one is this one. So what are the major equations we got? So the two major equations we received. Okay. So what we received till now, first is V equals to IR. This is our equation number 1. And another equation what we received, R. This R we try to find on what vectors R depends. R equals to rho L by A. These are the two equations. Okay, here two graphs we have plotted for conductors, and here we found the relations between the R, length of wire, and area of cross section. This is our equation number 4. So these are the two equations. Now the question is how we can relate इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दिस इज द अगेन ड्रॉ ए वायर, इस वायर में हम लोग एक बैटरी लगाए हुए हैं, इसमें वोल्टेज भी दिए हुए हैं, ठीक है, इसका लंबाई L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। So this is current. So there will be certain electric, if E is related to electric field. If you remember, so what is the relations between electric field and V? So V is equal to E multiplied by N. Electric field multiplied by E means electric field. Electric field multiplied by distance is that is nothing but potential difference. What is E? E write down E equals to electric field. What is E? E means you can write down E equals to electric field. E equals to electric field. E equal to, so V equal to E L, this is our equation number 5. This V equals to E. E means electric field. L means length of the wire. Electric field, this is force, this is energy, this is what is, this is energy. Watt, or this is the watt. E means that is the force. This is the distance. So like that, work equal to force into displacement or force into displacement, like that. So E into L. So E means electric field, that is the electric force per unit positive charge. Okay. So V equals to EL. So now these are the equations which another concept which we will be considering. Okay. So area of, suppose this is an wire. So these are the concepts. Another very, suppose it's ये इसका L है, इस वायर का लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L है, मान लो इसमें करंट जा रहा है I, I करंट इज फ्लोइंग,
ओके, तो आई करंट मीन्स, तो आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो वी डिफाइन जे एज आई बाई ए, जे इक्वल टू करंट डेंसिटी। तो यूनिट एरिया पे कितना करंट जाएगा, ओके। जैसे इसका मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला से इस फॉर्मूला ले सकते हैं, व्हाटएवर क्रॉस एरिया इज देयर। तो जे इक्वल टू आई बाई ए, और I equals to J multiplied by A. So this will be our equation number 6. I equal to J or J equals to I. So this is our equation number, both are equation number 6. Okay. So current density and write J equal to current density. Current density. J equals to current density. Now J equals to current density. So I equal to this. So now we have come up with this. You see, this is सर जे क्या है? J करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब एक यूनिट एरिया पे कितना करंट फ्लो करता है। जैसे बड़ी सी पाइप आप इमेजिन कर सकते हो, ये पूरे पाइप के अंदर इतने पानी जा रहा है, करंट इज जस्ट लाइक वाटर फ्लो, करंट वेलोसिटी। तो एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना पानी जाएगा। जैसे मान लो इसका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, तो इसमें 2 एम्पियर की करंट जा रहा है, तो 2 एम्पियर की करंट जा रहा है। तो आप इसका करंट डेंसिटी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 2 एम्पियर को 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड कर लेना। ओके, सो दैट विल बी 1/5 एम्पियर पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो करंट डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, करंट डेंसिटी इज द करंट दैट फ्लोज थ्रू यूनिट्स सरफेस एरिया और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट डेंसिटी ये इसको कैसे पढ़ेंगे? करंट दैट फ्लोज थ्रू यूनिट, ये अपन ए लिखा है तो इसको पढ़ेंगे यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका नाम है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल। ओके, so this is how. So now we have got major equation V equal to IR, our first equation from Ohm's law. Then this is the resistance, this is the experiment conducted by Ohm, R equal to rho L by A. We have studied these two in standard 10. Okay, and then this one we studied in first chapter, V equals to electric field into L. Okay, then another equation, this is a simple versions of current, definition of current. I J equal to I by A or I equal to J A. So these are the things. And another thing is this one here, rho I have mentioned the rho here. Rho is called specific resistance. Specific resistance. Specific resistance. Rho is called specific resistance. Okay, और इसको resistivity भी कहते हैं। Resistive, rho is called specific resistance or resistivity. Okay, this is called rho. And another symbol that we can understand, 1 by rho. 1 by rho is called sigma. That is called, ये resistivity है, तो reciprocal of resistivity is called as conductivity. इसको क्या बोलते हैं? Conductivity. 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 So if somebody asks you what is Ohm's law, so basically these two are Ohm's law. These two are Ohm's law. This is Ohm's law in a macroscopic form. बड़े स्तर पर जो ओम्स लॉ होता है, जो क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे, V equal to IR, R equal to rho L by A. So this is the Ohm's law. Okay, and the name of the symbols is L is the length of wire, A is area of cross section, rho is specific resistance or resistivity of the conducting wire. So this is your Ohm's law. This is the equation. This is the equation of a voltage, that is a potential difference, is equal to electric field multiplied by V. What is V? V को अगर शॉर्ट में कोई बोलोगे तो इसको बोलोगे PV, potential difference.
L equal to length of wire, E equal to electric field. So electric field means that, so that is some electric, is some force is propelling the electrons, propelling the positive charge carriers. ठीक है, अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या रहेगा, ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये करंट का डायरेक्शन ये है ई इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स जो धक्का लगा रहा है, force multiplied by distance, that is the work done. Okay, so this is the equation. Another equation I described here, that is I equal to J, and another equation I described I relationship. This is not basically equation. So 1 by rho is defined as sigma. Rho is resistivity, reciprocal of resistivity is conductivity. रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं। So this is now we will just try to establish a relationship between, we will reduce this particular relationship in this term, and this term and this term. Could you get my point? हम अभी V equal to IR वाला रिलेशनशिप को E, J और सिग्मा की टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। Okay, because we have got we will now analyze and synthesize these equations to write this equation in the form of E, J, sigma. How is it possible? Let us see. Because you see, V is related to E, I is related to J, okay, and R is related to rho, and from this it can come up. Okay, let us see. सर तो डेरिवेशन अब स्टार्ट होगा, हाँ? जो आप डेरिवेशन करवा रहे थे वो अब होगा स्टार्ट? नहीं, ये डेरिवेशन का हिस्सा है ना, ये एंटायर डेरिवेशन का हिस्सा, मतलब स्टार्टिंग से जब से आप लिखवा रहे हैं। हाँ, it will be 2 minutes more that derivation should be over. These are entire the part of the derivations, the questions which we had written at the beginning. That is J equal to sigma E. What we are going to derive? We are going to derive J equal to sigma E. ये हम लोग derive करने जा रहे हैं। इसका आधा हिस्सा हम लोग कर चुके हैं, तो डेरिवेशंस कंटिन्यू। ओके, तो अब हम लोग को ये सब बेसिक चीजें हम लोग स्टार्ट करेंगे V इक्वल टू IR से। V के जगह पर हम क्या लिखेंगे, V के जगह पर हम लोग E into L लिख सकते हैं, और ये कौन सी केस के लिए हो रहा है ये जरा हम लोग दिमाग में रखते हैं। ये है एक तार है जिसका लंबाई L है, और आप इसको ऐसा इमेजिन भी कर सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये तार है जिसके थ्रू करंट जा रहा है, ठीक है, इसके थ्रू करंट जा रहा है I, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A है, और इसका लंबाई कितना है L, ठीक है, और इसका अक्रॉस कितने पोटेंशियल दिए हैं हम लोगों ने, V पोटेंशियल दिए, इसका अक्रॉस जो पोटेंशियल दिए हैं ये मींस वोल्ट में, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसको P बोलते हैं। Whenever doing physics, always draw lot of sketches to understand the situation. करंट आई जा रहा है, ये तार है, और इसका नाम रख लेते हैं C, और इस एंड का नाम मैंने रख दिया B। जो एयर है, इसका लंबाई L है, इसका जो थिकनेस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंड्रिकल है, तो ये A है, सर्कल बेस एरिया A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, इसके अक्रॉस में भी पोटेंशियल दी गई है, और इसका जो रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इसका रो है रेजिस्टिविटी इस वायर का, हर वायर का रेजिस्टिविटी यूनिट होता है, हर वायर का रेजिस्टिविटी यूनिट होता है। कॉपर का रेजिस्टिविटी सबसे कम होता है, इसलिए कॉपर तार हम ज्यादा यूज करते हैं। ओके, तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो E इक्वल टू, तो I के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, J इनटू A लिख सकते हैं। R के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, रो L बाई A लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए दोनों साइड से L बोथ साइड से, ठीक नाउ, और इस साइड में सिर्फ क्या बच गया, J बच गया, ठीक है, J बच गया। ये A से A कैंसिल हो गया, तो ये रो इस साइड में नीचे आ जाएगा,
तो ये रो आ जाएगा, तो ये E बाई रो हो जाएगा, E बाई J इक्वल टू E बाई रो। अच्छा, J इक्वल टू E बाई रो, और J को हम लिख सकते हैं 1 बाई रो को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा। तो हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा J इक्वल टू सिग्मा, ये लिख सकते हैं। तो दिस इज माई, आई थिंक दिस इज इक्वेशन नंबर 7. So current density equals to, and we reach this one. Okay. So with this we ended up today's derivations. That is how current density is sigma means conductivity multiplied by electric field. Okay. So we'll wind up the sections here, and what we have to do, you have to do that one notes, some questions note down. Within the coming 3 minutes, another things we can just derive, because one thing is just left. So suppose this is the wire, this is the wire, इसके अंदर करंट जा रहा है I, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये L है, और इसमें हम लोग ने V पोटेंशियल दे रखा है। ये दिस इज द यू कैन कंडक्टर, टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, कंडक्टर, ये कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर। तो ये कंडक्टर है, इसका लंबाई L है। तो अब हमें इसमें एक चीज देखनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, so I will just end up drift velocity. You have to understand what is drift velocity. तो drift velocity जैसे हम लोग इसमें इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे इसका अंदर में इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशंस में, जैसे इधर गया, इधर टकराया, इधर गया, इधर गया, इधर आया, तो ये जैसे लुक हियर, दिस इज रैंडम मोशन। हम लोग ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, इसका अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट बेसिकली व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग करंट, इट मूव्स इन ए रैंडम मोशन, और ये दो और एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। जैसे एक अभी जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, इन क्राउड ऑफ पीपल व्हेन यू ट्रैवल, तो वी लाइकली टू बम्प विथ ईच अदर, एक दूसरे से कोलिजन्स होता है। तो दो एवरेज कोलिजन्स के बीच में, तो जितना देर तक ये टाव है, टाव को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो टकराने से पहले, किसी से टकराने से पहले का समय जो है, जैसे अपन भीड़ में है, खुले में है तो अपन टकराने का किसी चांस नहीं है, लेकिन जब भीड़ में होते हैं हो सकता है 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद कभी टकरा गए, कभी किसी के साथ 4 सेकंड के बाद टकरा गए, कभी 3 सेकंड के बाद टकरा गए, कभी 10 सेकंड के बाद टकराए। तो ये सब एवरेज टाइम जब निकालेंगे, दैट इज द एवरेज, दैट इज टाइम द रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम, इज द time between two successive collisions, time between two successive collisions. This is a very important concept, time between two successive collisions. So time between two successive collision, relaxation tau equal to relaxation time between two successive collisions. ओके ना, तो आपको इस पे क्या करना है, ये जो टाउ है, तो नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस द करंट इन टर्म्स ऑफ दिस टाउ। तो कैसे हम एक्सप्लेन कर ले, I इक्वल्स टू, इट विल टेक अनदर 4 minutes, 4 to 5 minutes I think. I means the charge, that is the charge into time, I equal to Q into del. Okay. So let it be equation number 1 for this. Okay. I equal to Q into del. So what is the charge which flows in time t? Del t.
टाउ टाइम पे कितने चार्ज इसमें फ्लो कर सकते। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, तो ये बेसिकली क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो ये चार्ज इसमें होने के नाते इसमें जो फोर्स लगेगा ई लगेगा, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। ओके, तो दिस इज द फोर्स। तो लिखो फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, माइनस ई। चार्ज इलेक्ट्रॉन का माइनस ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो माइनस ई। फोर्स, इलेक्ट्रॉन का मास अगर m है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगा, फोर्स इक्वल टू ई। और इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई माइनस माइनस तो फोर्स। तो इस इलेक्ट्रॉन का तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपन। तो आप यहाँ पर रैंडम मोशन के बाजू में इसका एक्सेलरेशन लिखो, एक्सेलरेशन इक्वल टू ई बाय एम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपन मास। क्या फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में लिख लो, फोर्स अपन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, तो दिस इज बेसिकली माइनस ई अपन ए। अगर अपन ए का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो दैट इज ई अपन एक्सेलरेशन। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस a काइनेमेटिक। लास्ट ईयर आपको याद होगा 10th में हम लोग पढ़े थे काइनेमेटिक्स इक्वेशन v इक्वल टू, तो v means that is the drift velocity, velocity of electron between any two. Okay, so तो दिस इज वेलोसिटी, तो इसको हम vd बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। v को क्या बोलेंगे, vd। that is the, this is the velocity of electron between two successive collisions। vd is equal to इनिशियल वेलोसिटी, अगर जैसे अपन जीरो ले लिए, कॉलिजन से वक्त पहले से जीरो था, एवरेज वेलोसिटी e कितना हो गया, ये हो गया जीरो, ये एक्सेलरेशन से माइनस ई बाई एम, और टाइम की जगह पर हम क्या लिखेंगे, और डी डी इज इक्वल टू ई बाई एम, हो गया ड्रिफ्ट एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्विकली विल वाइंड अप। तो लिखो vd इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको लिखो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टू सक्सेसिव collisions, ड्यूरिंग टू सक्सेसिव collisions। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टू सक्सेसिव, जैसे दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है। जैसे अपन ने दशहरा मैदान में घूम रहा है भीड़ के अंदर, तो हमें हर बार टकराने का गुंजाइश है, तो हम 10 मिनट में कितने डिस्टेंस तय किए, वो तो तय करना मुश्किल है, बट हमें दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में हम लोग क्या वेलोसिटी रही वो हम कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिकली फॉर्मूला क्या रहा, जी डी इक्वल टू ई बाय एम इनटू टा। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर, यू कैन टेक इट एज। नाउ अभी हम लोग इस रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप में, तो आई करंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिखा था आई इज इक्वल टू क्यू इनटू, तो इतने इतने टाइम के बीच में कितना करंट, टाउ टाइम टी हो गया, if tau during relaxation time how much current,
Q equals to I into tau. So we'll wind up quickly. So Q equal to I into tau, charge equal to current multiplied by time. तो I की जगह पर I लिखेंगे, टाउ लिखेंगे, और हम लोग फिर ग्रेजुअली विल कम टू ईडी. तो और ये इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? J equal to I equals to J into I equals to J into A, or you write the descriptions here, all the descriptions. तो इसके now you can see how much charge does flow. जैसे Q चार्ज इसके अंदर हीट, ये टाउ टाइम के अंदर, ये टाउ टाइम के अंदर कितने चार्ज जा रहा है हम लोग ये देखना है. तो जैसे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से A is area of cross section. तो if A is area of cross section, आप इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन इधर है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन आल्सो. तो व्हाट इज वेलोसिटी? तो ये टाउ टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस तय करेगा, दैट इज Vd into टाउ. ध्यान से देखो, Vd मल्टीप्लाइड बाय टाउ. रिलैक्सेशन टाइम के अंदर इसका हम क्या बेसिकली डिटरमिन कर रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा करके इलेक्ट्रॉन जो जिगजैग मोशन में जा आ रहा है, तो ये दो सक्सेसिव, जैसे ए गया, बी से टकराया, फिर सी से टकराया, फिर डी से टकराया, फिर वापस, तो इस टाइप से जो ए से बी, ये जो डिस्टेंस है, ये जो टाउ है, ये इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन से, तो ये जो टाउ है, ये जो है इसमें वेलोसिटी भी दी है, ये टी टाउ है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस. तो ये दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव Vd into टाउ. तो इसको जब अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स इस ड्यूरेशंस में इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस किए. तो व्हाट इज दैट? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको लिखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग कैसे होगा? जैसे मान लो कि ये जो मटेरियल है, इसमें n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. तो n इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय, आप सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करो, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, a into Vd. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ये देखो, ये एरिया, ये इसका हाइट, हाइट की जगह पर Vd लिखा. तो n क्या है? n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ये सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये हो गया जो NaVd टाउ, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने टाइम पे इसको क्रॉस किए, इतने नंबर. तो चार्ज कितना क्रॉस किया होगा? चार्ज इक्वल्स टू एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है E, तो Q इक्वल्स टू NaVd टाउ, ये हो गया चार्ज. तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इक्वल टू Q बाय टाउ,
तो ये हो जाएगा एन ए ई डी ई टाउ ई अपॉन टाउ, टाउ से टाउ कट गया, तो व्हाट इट बिकेम फाइनली सर ये क्या, सर ये समझ नहीं आया। हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट। हाँ ये देखो करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम। चार्ज कितना वो एरिया को क्रॉस कर गया, ये जो मैंने जो फिगर बनाया था इधर, ये इसमें इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे कॉपर का है, कोई एल्यूमिनियम का है, किसी का है, ठीक है। इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉपर में है, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स, हम इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करके हम ये पता कर लिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है कितने, कितने इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं, एन ए जी डी टाउ टाइम में, टाउ टाइम पे इतने इलेक्ट्रॉन इधर से जाके इधर आ जाएंगे, मतलब इधर से घुसेंगे और इधर से निकलेंगे। ये दिस इज बेसिकली जो रैंडम मोशंस में ऐसे ऐसे करके जो मोशंस टकरा के इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो डिस्टेंस है वो वी डी इनटू टाउ, जैसे ए है बी है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे, एक इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, और टकराने से पहले जितना डिस्टेंस तय करता है वो होता है वी डी इंटू टाउ, ठीक है, दोनों के बीच में। तो ये जैसे जैसे हम कोई भीड़ में है तो मतलब किसी से टकराने से पहले भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, एक दो स्टेप से, जितना भी लंबाई है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर व्हाटएवर, ठीक है। और भीड़ में जब रहते हैं कभी अपन थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस तो कोई किसी से नहीं टकराते हैं, कभी एकदम से टकरा जाते हैं, तो ये जो एवरेज जो है वी डी टाउ है, ये जो ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें दिस द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन पता चलता है। तो ये कॉलिजन से हम इनडायरेक्टली हम ऐसे निकालते हैं, ये बेसिकली वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, दिस इज व्हाट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम डेंसिटी, एन क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपस में ये दोनों चीज को मल्टीप्लाई करने से, ये दोनों चीज को आपस में मल्टीप्लाई करने से एन ए बी डी टाओ ये हो गया, इसको फिर चार्ज से मल्टीप्लाई करने से हमें चार्ज पता चल गया, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही है, तो टोटल चार्ज जो बाहर जा रहा है क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी करंट कैसे निकालते हैं, तो ये क्यू चार्ज टाउ टाइम पे कितने चार्ज क्रॉस किए, ठीक है। जैसे स्कूल के गेट पे अपन खड़े हो गए छुट्टी के समय पर, हम करंट कैलकुलेट करेंगे, कैसे करंट कैलकुलेट करेंगे, हम ये करेंगे कि भाई स्कूल के गेट में हर एक मिनट में कितना बच्चा बाहर निकले, सपोज एक मिनट में छुट्टी के समय पर 50 बच्चे एक मिनट में बाहर निकल रहे हैं, तो स्कूल का करंट कितना हो गया, 50 स्टूडेंट्स पर मिनट, ये करंट हो गया। तो इसी टाइप से चार्ज एक सेकेंड में, जैसे अपन डोर के पास खड़े हो गए, ये डोर जैसा है क्रॉस सेक्शन जिसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन को एक सेकेंड में कितने चार्ज क्रॉस कर रहे हैं, तो एक सेकेंड में कितने चार्ज क्रॉस कर रहे हैं, एन ए बी डी मल्टीप्लाइड बाई, सो दैट इज नथिंग बट करंट। तो ये करंट हम लोग कैलकुलेट करें, तो करंट हम लोगों का क्या मिला, करंट का फॉर्मूला फाइनली हमें क्या मिला, एन ए बी डी इंटू, अब इसी में बस लास्ट 1 मिनट कैलकुलेशंस, हमें बताओ वी डी, अब हमें करंट का फॉर्मूला मालूम था, करंट को हम क्या बोलते हैं, करंट को हम बोलते हैं जे इंटू, करंट को क्या बोलते हैं, जे इंटू ए बोलते हैं। अच्छा एन यहाँ पर ए है, वी डी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ई ई बाई एम, वी डी का वेलोसिटी कितना है, ई ई बाई एम इंटू टाउ, ये था ना, वी डी का फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे, दिस इज द फोर्स मल्टी velocity u equals to a plus at, v equal to u plus at, u जीरो था at, ये एक्सेलरेशन से ये रिलैक्सेशन टाइम है, ये vd के जगह पर लिखा है, ठीक है, और ये e को e है, ठीक है। तो अब हमें अभी ध्यान से देखो, दोनों साइड से एक कट गए, ठीक है, दोनों साइड से एक कट गए, अब फाइनली क्या बच रहा है, फाइनली ये बच रहा है, अभी देखो j इक्वल्स टू, बस हम लोग का रिलेशनशिप है, तो j इक्वल टू, अभी ध्यान से देखो, ये e से e मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या रह जाएगा, e स्क्वायर, ये हो जाएगा n e स्क्वायर बाय m
टाउ मल्टीप्लाइड बाय, मैंने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा मैंने ई को थोड़ा दूर से इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पहले एक फॉर्मूला मालूम है। पहले मुझे कौन सा फॉर्मूला मालूम है, पहले मुझे अभी जो पहले पिछला फॉर्मूला डिराइव किए थे, जे इक्वल टू सिग्मा ई डिराइव किए थे, पहले फॉर्मूला जे इक्वल टू सिग्मा ई डिराइव किए। तो जे इक्वल टू सिग्मा ई के साथ जब कंपेयर करोगे तो सिग्मा किसके बराबर निकला, ये पहला वाला फॉर्मूला अभी जो पहले हम लोग डिराइव किए थे। अब क्या डिराइव किए, जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, तो ये सिग्मा किसके बराबर हो गया, सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर एम अपॉन टाउ। तो दिस इज द रिलेशनशिप व्हिच इज आस्क्ड टू डिराइव। तो दिस इज द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज J equals to so sigma equals to n e square m upon tau। सिग्मा क्या है, this is conductivity equal to n equal to number of electrons per unit volume, E equal to charge, tau equal to relaxation time। तो sigma equal, this is the fundamental। तो J equal to this is the relationship। तो इसको लिखो, ये कौन सा रिलेशनशिप है, फंडामेंटल फॉर्म और माइक्रोस्कोपिकल फॉर्म, इसका नाम है माइक्रोस्कोपिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। Okay, so finally we ended, everything is done, so just recap। Okay, so last 1 minute recap, what is that recap, so what is that recap, so all these formulas whatever we derived, okay, so systematically once systematically recap to first G equals to IR, second R equal to rho, this is all the things we did today, rho L by A, J equal to I by A, 4 sigma equal to 1 by rho 5, okay. E equals to E into L, E का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वेलोसिटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय L। तो इसमें फिगर बना दो, ये L है, इसका लंबाई, ये तार देखने में कैसा है, ऐसा, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये लंबाई है, इसमें आई करंट जा रहा है, इसमें जो पोटेंशियल दिए हैं दोनों एंड पे वो भी पोटेंशियल दिए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये इस सिचुएशन का सब सिंबॉलिक फॉर्म है। ये जो तार है इसका रेजिस्टिविटी रो है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसके बाद ये सब 5 रिलेशनशिप को लेके हम लोगों ने छठवां जो रिलेशनशिप डिराइव किए थे, सो दैट इज समथिंग लाइक रो इक्वल्स टू, इसके बाद छठवां रिलेशनशिप हम लोग ने जो डिराइव किए, सो दैट इज रो इक्वल्स टू जे इक्वल टू सिग्मा इनटू ई, ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ, यही ओम्स लॉ, मतलब ये भी ओम्स लॉ है, मतलब ये जो इक्वेशन 1 जो है ये यही है, दोनों एक ही, ये इस टर्म पे है, ये इसका माइक्रो, इसी का पर्सन है, जे करंट डेंसिटी, ये छोटे पर्सन, जो बड़ा पर्सन माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रो, फिर इसी को मॉडिफाई करके हम फाइनली जे को क्या किस फार्मूला से हम लोग निकाल लिए, एन ई स्क्वायर एम टाउ, ये हम लोगों ने निकाल, और एक फार्मूला हम लोग वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला निकाल लिए, ई माइनस ई बाई एम, तो इसका जब वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, और इसके बाद वैल्यू में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर हो जाएगा तो ई अपॉन एम,
So this is all about, or this is all about the things whatever we did today. I hope you got it. This is I think one the day one, day two, whatever I had written, it's done. Thank you. We'll end it here. Thank you, sir.